Hello everyone. So uh, we're talking about the chapter that is the coordination compounds, and you know that what we have already studied. Here you can see that some of the contains we have already studied. They are the first one that is the introduction, right? You know that the coordinate or coordination compounds are, and the second one that is salts and the types of salts. Third one, triple C, that means the coordinate complex compounds. Very next, it's central metal ion. You know the construction of the central metal ion, where it is actually used in complexes. Next one, that is the ligands and its types. We have the next point, that is the coordination number and coordination entity, and the IPAC nomenclature. After that, the isomerism, that is of basically two types. The first one is structural isomers, and next one that is the geometrical isomers. Here we can see that the structural isomers, they are basically of four types. The first one, that is the ionization isomers. Next is hydrate isomers and linkage isomers, and the fourth one, that is the coordination isomers. We have already studied about the ionization isomers and the hydrate isomers. Today we will discuss about the linkage isomers and coordination isomers. Let's start linkage isomers. So we are talking about the third type, that is the linkage isomerism, and this linkage isomerism definitely contained ambidentate ligand, and you know that the ambidentate ligands are right. सो बेसिकली अगर बात की जाए लिंकेज आइसोमेरिज्म में, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा लिंकेज जो होगा वो जब भी हम कंसीडर करेंगे, राइट, उसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड हमें यूज में लेना पड़ेगा, राइट. सो बेसिकली अगर इस कंस्ट्रक्शंस को देखें तो हमें यहाँ नज़र आएगा. सपोज कीजिए ये कंस्ट्रक्शन देखें. क्रोमियम वी हैव H2O, that is 5, and SCN. What is SCN? It is thiocyanate, right? ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है वो आ रहा है 2+ चार्ज. इसी तरह से एक दूसरा जो कंपाउंड हमने यहाँ लिया है, इसमें क्या है, क्रोमियम हमने लिया है, H2O मॉलिक्यूल्स 5 हो गए ये लिगेंड्स, एंड NCS, दैट इज आइसोथायोसाइनेट, राइट. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर सेम है दोनों के अंदर, राइट. लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन साइट जो है इस SCN के अंदर वो है सल्फर वाला, राइट. लेकिन इस आइसोथायोसाइनेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एलिमेंट है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेसिकली एलिमेंट, वो है नाइट्रोजन, राइट. सो we can give the example of linkage isomers. दे सकते हैं हम ये example. So here we can say the SCN, that is the thiocyanate, right, and here is the isothiocyanate, right. Both are the ambidentate ligands. Here you can see the sulfur is making the coordinate bond with the chromium, and in this one nitrogen is making the coordinate bonds, right. So in short, in linkage isomers, right, we can consider ambidentate ligands, जैसा हमने यहाँ बताया SCN और NCS. एग्जाम्पल और भी लिया जा सकता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में, जैसे नाइट्रो का हम ले सकते हैं इस तरह से, और एक होता है आपके नाइट्राइट, राइट.
कुछ इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये ऑक्सीजन और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करेगा नाइट्रोजन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज आइसोमर्स। Well, the last type of structural isomers, that is the coordination isomers. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हम यहाँ ये जो दो एग्जांपल्स हम शो कर रहे हैं इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो इस क्रोमियम आई मीन टू से इस कंपाउंड का नेम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, hexacyano or cyanido, and that is chromate third, right? तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि पॉजिटिवली जो चार्ज पोर्शन है, देखें जरा लेफ्ट वाला पोर्शन जो है इसमें आपके कोबाल्ट यहाँ मौजूद है, राइट। और राइट हैंड साइड में दैट मीन्स अगर हम नेगेटिव पार्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो मौजूद है वो है क्रोमियम, राइट। सेंट्रल मेटल लाइन की पोजीशंस आप देखिए। लेकिन अगर इसका एक आइसोमर हम डेवलप कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो यहाँ अगर दोनों को कंसीडर किया जाए तो एक साफ बात नज़र आ रही है, वो ये देखिए कोबाल्ट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है और इसमें कोबाल्ट जो है वो राइट हैंड साइड में है। कुछ इस तरह का लगेगा कि लिगेंड्स जो है वो आपके क्या बोलते हैं चेंज हो गए हैं, राइट। क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को कंसीडर करें, राइट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल मेटल आयन को हम मूव नहीं करें, राइट। सेंट्रल मेटल आयन जो है वो वहीं रहेगा। हाँ, लिगेंड मूव कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज कीजिए सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे क्रोमियम है, ठीक है, ये फिक्स है, लेकिन ये आपके NH3 मॉलिक्यूल्स इधर आ जाए, राइट। Well, again we can see the coordination isomers, and in this example we can say that suppose this is the complex, right. Here the cobalt is at the left hand side, right. ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और क्रोमियम जो है वो राइट हैंड साइड में है, करेक्ट। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ सेंट्रल मेटल आयन कभी भी मूव नहीं करेंगे, राइट। मूव करेंगे तो क्या मूव करेंगे, ये लिगेंड्स मूव करेंगे, राइट। ये NH3 मॉलिक्यूल्स इस तरफ आएंगे तो CrNH3 6 कुछ इस तरह से आपके ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, राइट। इसी तरह से ये कोबाल्ट जो है, राइट, इसके पास में कौन से आपके लिगेंड्स आएंगे, यस, साइनाइड Cn नेगेटिव, राइट, और COCN6 इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आप एक्सचेंज करेंगे किनका, लिगेंड्स का, ना कि सेंट्रल मेटल आयन का, ओके। Well, today we are also discussing the next topic, that is stereoisomers or stereoisomerism, correct. And this stereoisomerism is also classified into two types. The first one, that is the geometrical isomers, and the next one, that is optical isomers. All right, I'm just repeating one more time. Stereoisomers, they are those isomeric constructions where the molecular formula is same but the three-dimensional structures are quite different. 3D structure, right, they are quite different. That's why they are called what? Stereoisomers. They are classified into two types. First is geometrical isomers and the next one, that is optical isomers, right? So we will study first the geometrical isomers. Let's start geometrical isomers. So here we can see that the geometrical isomerism. So first of all, definition.
Definition is those compounds, that means the compounds which have same molecular formula but the geometry is different. But the geometry is different. That's why it is been called geometrical isomers, right? क्लास 11th में हमने जैसे स्टडी किया ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस जैसे हमने पढ़े थे, इसमें एक वर्ड था, नाम सुना होगा आपने, सिस, राइट? और एक वर्ड जो है वो आता है, इसमें आता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांस, राइट? इनको हम इन्वॉल्व करके कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टडी करेंगे, राइट? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अगर हम क्लासीफाई किया करें बेसिकली, तो यहाँ दो तरह से हम स्टडी कर सकते हैं. एक पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होगा. एंड द सेकेंड वन जिसको पढ़ें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, राइट? तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और दूसरा हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ये कैसे, किस तरह के क्या कंस्ट्रक्शंस होंगे, आइए देखते हैं वन बाय वन. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टडी कर रहे हैं, देखिएगा गौर से, और वो है MA4. बेसिकली यहाँ अगर देखा जाए तो M जो है सेंट्रल मेटल आयन है और A जो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं वो कितने नंबर्स में है, 4 नंबर्स में, राइट? तो अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन अगर शो करें तो कैसा हो सकता है, ये हो सकता है M, ये सेंटर में हो गया, राइट? और इसमें चारों तरफ जो A यानी कि लिगेंड्स हुए उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, करेक्ट? तो ये टाइप जो है आपका है MA4, करेक्ट? अगर इस कंस्ट्रक्शन को गौर से देखें तो आपको ये स्क्वायर प्लेनर या इस तरह का कंस्ट्रक्शन नजर आएगा. क्लियर? जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे A लिगेंड्स हैं, दैट मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड्स दे आर, राइट? इस A को आप इस तरफ लगाइए या इस तरफ लगाइए, कहीं भी लगाइए आप, कंस्ट्रक्शन इसी तरह का बनेगा, राइट? तो बेसिकली ऑलराइट, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, सपोज कीजिए, और वो ले सकते हैं कुछ ऐसा. सपोज कीजिए हमने लिया निकल, राइट, और 4Cn, राइट, और इस पर चार्ज हम दे रहे हैं 2 नेगेटिव. क्लियर? तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे शो किया जाएगा, तो निकल आप सेंटर में रखें, इस पर 2 प्लस चार्ज होगा, एक Cn माइनस इस तरफ हो गया, एक Cn माइनस इस तरफ, कुछ इस तरह से, राइट? कुछ ये कंस्ट्रक्शन मिलेगा. क्लियर? तो अगर पूछते हैं एग्जाम में कि भाई NiCN4 2 नेगेटिव जो है, ठीक है, क्या ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं. अब इस लिगेंड को चाहे आप यहाँ लगाइए या फिर इस तरफ प्लेस कीजिए, राइट? तो MA4 टाइप जो है NiCN4 जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन लिया, तो इसमें आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, राइट? ओके.
चलिए देखते हैं इसका सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है आपके MA2B2 टाइप, राइट। इस टाइप में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इस MA2B2 टाइप का क्या होगा। तो सेंट्रल मेटल आयन तो हमारे पास ये रहा, राइट। वी हैव 2A लिगेंड्स, राइट। तो मैं इन 2A लिगेंड्स को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, राइट। और ये B2 जो आपके लिगेंड्स हैं इनको मैं अटैच कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, क्लियर। अगर देखा जाए तो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी वही स्क्वायर प्लेनर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। इसी का ही दूसरा जो अगर हम आइसोमेरिक कंस्ट्रक्शन बनाना चाहें जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लेट्स सी दैट वो कैसे तैयार किया जाएगा। हम क्या करें, सेंट्रल मेटल आयन को तो सेंटर में ही रखना है, राइट। इस ए को अपनी प्लेस पे ही रखिएगा। अब नीचे जो ये ए है इसको ले जाइए इस बी की जगह पर कुछ इस तरह से, राइट। इस बी को ले आइए इस ए के प्लेस पर कुछ इस तरह से, और ये बी ऑलरेडी जैसे पहले था वैसे ही रखना है। तो गौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिल गया है, क्लियर। तो यहाँ देखें तो ये दोनों जो ए लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो बी लिगेंड्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसको बोलेंगे आपके सिस, राइट। बट इन दिस केस यू कैन सी दैट A is here, right, and the another A is going across, क्रॉस चला गया है, राइट। इसी तरह से B जो है ये भी क्रॉस चले गए हैं, क्लियर। इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है इस कंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे आपके ट्रांस। तो मैंने बताया था आपको कि जिसमें सिस और ट्रांस कंस्ट्रक्शन दोनों मिलते हैं वही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, क्लियर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कंसीडर करना है हमें तो MA2B2 टाइप का जो कंस्ट्रक्शंस होंगे इसमें सिस कंस्ट्रक्शन हमें इस तरह से मिल सकता है और ट्रांस कंस्ट्रक्शन इस तरह से मिलता है, राइट। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो ट्रांस कंस्ट्रक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा स्टेबल, क्लियर, ओके। सो इट इज MA2B2 टाइप। Well, this MA2B2 type for coordination number 4 we can give one example। यहाँ हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए, और वो एग्जाम्पल जो है सपोज कीजिए हम ले लेते हैं ये PT, it's NH3, it's 2 and suppose Cl2। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो है सपोज कीजिए चार्ज है 2+, राइट। तो इसके जो सिस और ट्रांस कंस्ट्रक्शंस कैसे क्या बन सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल आयन को तो आप सेंटर में रखेंगे, राइट। इसमें 2NH3 लिगेंड आपके हैं, तो NH3 इज हियर, वन मोर NH3 इज हियर, राइट, एंड 2Cl कुछ इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है, क्लियर। ये हो गया आपके NH3 दोनों क्लोज हो गए, अमोनिया, राइट, और दोनों Cl क्लोज हो गए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सी हुई, सिस, राइट। लेकिन अगर हमें ट्रांस कंस्ट्रक्शन शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करेंगे, NH3 को ले जाएं इस तरफ और Cl को ले जाइए इस तरफ, तो क्या होगा, इट्स PT। यहाँ आपके पास NH3 है, ये क्रॉस हो गया आपके NH3, राइट। Cl इस तरफ आ गया और एक Cl इस तरफ आ गया, राइट। कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये Cl एक दूसरे के क्रॉस हो गए हैं, यहाँ पर ये दोनों Cl एक दूसरे के क्लोज हैं, ऑब्वियसली दिस विल बी द ट्रांस स्ट्रक्चर, ऑलराइट। सो वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ व्हाट,
Ma2B2 इसका एग्जाम्पल देना है तो हम ये वाला एग्जाम्पल इसके अंदर शो कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, तो हम इसका नेक्स्ट टाइप जो है पढ़ेंगे अब, राइट, जिसको हम कहेंगे आपके MAA2B2।